Hello everyone, you're welcome to my first note. This is Bhupesh Sharma, and in this video, we are covering the culture studies important concepts. And in this video, we will be covering the concept of habitus, the term which is coined by the French sociologist Pierre Bourdieu. Two to three times there have been a question for this, and then it becomes very important when the any term or concept is repetitively asked to cover it in details. Right. It will be immensely helpful for your upcoming UG SNET English Literature examination as well as for your assistant professor exam, as here we cover things in a pretty much detail. तो हैबिटस essentially है क्या? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसके लिए वर्ड होगा स्वभाव, आपकी प्रकृति, आपका मिजाज, the way you think, the way you act, the way you approach things, the way you behave, and that is determined by the social background. This is what Pierre Bourdieu says. Habitus आपका हो गया, the way you think, the way you act, आपका स्वभाव, आपका मिजाज, the way you approach and the way you behave, वो आपका habitus हो गया, ठीक है? And now what has impact on it? What does determine this? Social Bourdieu says the social class of the person, social background, the culture background, आप जहाँ से आते हो, आप जिस तरह के परिवेश से आते हो, right? This is what habitus is. Now, the history, if we go into the history of this concept, so the term used for this is hexis, which is by the Aristotle. Okay? So hexis means disposition. Again, the sabhav, prakriti, mijaz is a quality of character, a habit, preparation, a state of readiness, tendency to act in a specified way. आप कैसे एक्ट करते हो, कैसे नहीं करते हो, एक एक स्पेशल सोशल क्लास के बेसिस पे वो डिटर्मिन होता है। एक एलीट क्लास का बच्चा अलग तरीके से उसका बिहेवियर रहेगा, लो क्लास का बच्चा थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है, एक हायर क्लास सेटिंग में अपने आप को अनकंफर्टेबल पाएगा, उसका टेस्ट है ना, उसके शौक वो काफी अलग होंगे। नाउ पीरे बॉडी हैव गिवन दिस वेरी लॉन्ग विंडेड एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस, राइट? यहाँ पे दो तीन चीजें हमें देखनी है कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्हाट द वर्कर ईट्स एंड स्पेशली द वे ही ईट्स, द स्पोर्ट ही प्रैक्टिसेस and the way he practices his political opinion and the way he expresses them are systematically different from the industrial proprietors corresponding activity. जो उस इंडस्ट्री का मालिक है उससे तो वो कहीं हद तक अलग होगी, ठीक है, there will be difference, ठीक है, क्योंकि क्लास का डिफरेंस है, क्योंकि क्लास का क्या है, डिफरेंस है। तो आपकी सोशल क्लास यहाँ पे मेन फैक्टर है। ही वाज अ सोशियोलॉजिस्ट, ही हैज लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट एंगल। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है अलग अलग और सेम चीज है वही, कि द वे ऑफ अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड perceives and reacts to the world, ठीक है, द वे अ पर्सन ऑफ अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड perceives and react to the world, वो आपका क्या है, हैबिटस है। ये आपकी ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की डिक्शनरी की एक्सप्लेनेशन है, ये आपकी कॉमन इंटरनेट की आपकी एक एक्सप्लेनेशन है, वेयर इट सेज द हैबिटस इज शेप्ड बाय, which is how you act, think and perceive the world, shaped by what, social background, class, culture, experiences. अब इन सबको पढ़ने के बाद मैंने अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट की जो हम सबको करना चाहिए, है ना? द रीफ्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आप चीजों को समझे हो, हैबिटस इज योर वे ऑफ अप्रोचिंग एंड बिहेविंग टुवर्ड्स द थिंग्स अराउंड यू, एंड दिस अप्रोच एंड बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन्स सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। एंड I want you guys to give me your suggestions, okay? Or whatever you feel, your feedbacks in the comment section. That help me a lot, right, in making videos, and that also help me to reach more and more people, right? Now, here we have the critical and theory के एंगल से भी हम इसे देखते हैं, तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। देखो, इस टर्म को क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज दिस टर्म इज डिटर्मिनिस्टिक इन कॉन, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक है मतलब इट डजंट गिव अवे टू द इंडिविजुअल एजेंसी। इंडिविजुअल एजेंसी का मतलब कि आदमी के पास फिर कंट्रोल कहाँ रहेगा? अगर सोशल बैकग्राउंड, कल्चर, क्लास सबको डिटर्मिन करेगा, फिर उसके पास कहाँ कंट्रोल रहेगा? क्योंकि हमारे पास तो एक कंट्रोल रहता है कि जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा माइंड जब ग्रो कर जाता है, क्रिटिकल, जब हम क्रिटिकली सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने लिए चीजें अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है 20-25 की उम्र में, ऑब्वियसली वो नेचुरल नहीं होती, बट वी लर्न इट, ठीक है, तो हम काफी इन्फॉर्म्ड एक्शंस करते हैं, ठीक है, काफी सोच समझ के।
एंड अगर हम थ्योरी में आए तो बॉर्ड्यूज प्रिंसिपल ऑफ हैबिटस इज इंटरवोवन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इन लिटरेरी थ्योरी। स्ट्रक्चरलिज्म में क्या चीज है? स्ट्रक्चरलिज्म में कंपोनेंट्स मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सिमिलरली हैबिटस में भी, हैबिटस का जो स्ट्रक्चर है वो भी कई चीजें मिलके बना रही हैं, सोशल बैकग्राउंड, क्लास, कल्चरल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इससे रिलेट करती है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में हमने देखा है कि हैबिटस के क्वेश्चन को 3 बार पूछा जा चुका है एंड दैट वाज ऑफ द सेम फॉर्मेट। और जब कोई चीज 2-3 बार 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 पूछी जाती है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट इन डिटेल, क्योंकि सेम चीज कल्चरल कैपिटल के साथ भी हुई। कल्चर कैपिटल को के कैरेक्टरिस्टिक कई बार पूछे गए, विच इज योर नॉलेज, योर एजुकेशन, और आपका डिस्पोजिशन, आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर, दैट ऑल कम्स इन योर टेस्ट एंड योर ड्रेसिंग सेंस, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, वो सारा कल्चरल कैपिटल में आता है। देन हिज टर्म ऑफ द डिस्टिंक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम इन बाकी की हम टर्म्स को इन ईच एंड एवरी वीडियो वी विल कीप कवरिंग इट, तो हमारे अपकमिंग वीडियोज आने वाले हैं इस सीरीज में। देन कल्चरल इंटरमीडियरीज का इनका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हु आर कॉल्ड द टेस्ट मेकर्स, और वो टेस्ट को ले जाते हैं लोगों तक, उनको करेज करते हैं कि वो ऐसा प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, वो सारे जो टर्म्स है वो पीरे बॉड्यू लेके आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि विच टू कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड बाय फ्रेंच sociologist Pierre Bourdieu have become increasingly influential in cultural studies? Culture capital, habitus, which is the 3 and 4 CD. This is the right answer. इसके बाद रहते हैं distinction, और दूसरा रहता है हमारा cultural intermediaries. ठीक है, so you know that my professor note provides you the top notch quality study material, classes, mentorship, इस बार results आपने देखे ही हैं। So if you want to get access to any of these, you can contact on this number, right? मैं details comment section में भी share कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी शेयर करी हैं। तो all I want you guys now to take this platform to more and more students, ठीक है, एंड इन दैट जर्नी यू कैन हेल्प मी विद योर लाइक, या कमेंट, क्योंकि वो हेल्प करता है ज़्यादा जितने लाइक्स यूट्यूब को लगेंगे कि इस वीडियो में है, जितने कमेंट्स है, वो उतने लोगों तक वीडियो को लेके जाएगा। इफ यू वांट टू टेक अवर प्लेटफॉर्म टू मोर एंड मोर पीपल, तो यू कैन डू द कंट्रीब्यूशन इन दैट वे। तो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट from exam perspective. If you have any suggestion, any feedbacks, do let me know in the comment section below. All the best, guys.